Good morning to all of you. Professor Deepak. Good morning. Sorry for delay, sir. Should we start? It's okay. Yes. Thank you, sir. Very good morning to all of you. Today we have with us Mr. Deepak Kumar Dhingra, Assistant Professor in Commerce at Kamla Lotia SD College, Ludhiana. Mr. Dhingra is having 19 years of experience in teaching. His areas of interest are marketing management and banking. He has, to his credit, various research papers in national and international journals. Sir, on behalf of Govindgarh Public College, I, Dr. Ruchika Jain, Assistant Professor in Commerce, welcome you to today's webinar. Sir, I would like to share that Govindgarh Public College was established in the year 2003, but in a very short span of time, college has progressed in all the fields like academics, cultural, sports, and more. NSS unit of college has been awarded first rank among 208 colleges of Punjab University, Chandigarh. Dear participants, our resource person, Mr. Deepak Kumar Dhingra, will today talk about benefits and usage of internet banking. So without any delay, I hand over the proceedings to Mr. Deepak Kumar Dhingra. Over to you, sir. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. I'm very thankful to the management of the college, Dr. Neena Seth Pachni, principal of the college, Professor Virendra Kumar, head of the Commerce Department, Dr. Ruchika Jain, Professor Rajesh Sharma ji from the management departments for organizing my lecture. I will try to do some value addition for the students, and I will try to focus more on the practical aspects of the internet banking. My area of research is particularly the internet banking, so I am having a little bit deep knowledge regarding that, so I would like to share about that. So firstly, let me share my screen. Yes, screen. So the screen is visible? Yes, sir, it is visible. Okay, so I would like to start with one a management story, then we will come to the topic. This is a one management lesson, corporate lesson. A crow was sitting on a tree and doing nothing all the day. A small rabbit saw the crow and asked him, "Can I also sit like you and do nothing all day long?" The crow answered, "Sure, why not?" So the rabbit sat on the ground below the crow and rested. All of a sudden, a fox appeared, jumped on the rabbit, and ate it. This is a small story, management story. Now, what is the moral of the story? This is before you. Moral of the story is that to be sitting and doing nothing, you must be sitting very, very high ups. In an organization, if you're sitting very high, then this kind of policy you can adopt. But otherwise, if you're working as a subordinate level and you don't want to perform, it is not possible to exist in the market.
is my second Menemen story. Little bird was flying south for the winter. It was so cold, and the bird froze and fell to the ground in a large field. While it was lying there, a cow came by and dropped some dung on it. As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, it began to realize how warm it was. The dung was actually thawing him out. He lay there all warm and happy and soon began to sing for joy. A passing cat heard the bird singing and came to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of cow dung and promptly dug him out and ate him. There is also a moral of the story. There are three morals. Number one, not everyone who drops shit on you is your enemy. But they're trying to say, if somebody is criticizing you, that maybe your friend may be criticizing for your betterment. Two, not everyone who gets you out of the shit is your friend. अगर कोई भी बंदा आपको किसी मुश्किल से निकाले तो जरूरी नहीं आपका दोस्त हो. And third one, when you are in the deep shit, keep your mouth shut. कहने का मतलब यह है, अगर ज्यादा मुश्किल में है, हालत बड़ी खराब है, तो बंदे को थोड़ा सा ज्यादा चुप रहना चाहिए. थैंक यू. अब मैं टॉपिक पे आता हूं. I will try to make this topic more illustrative and we will try to learn out of it. So this is a topic, internet banking a click away. So internet banking क्या है? It's very easy. हम कहीं भी, ये देखिए मेरे पास ये ब्राउजर है, आई एम हैविंग दिस ब्राउजर, मैं इस पे जा रहा हूं. मैंने HDFC बैंक का खोला है, ओपनिंग HDFC बैंक. Screen is visible. You have yes sir, it is. Yes sir, it is okay. visible. You have to go to the website of the bank, and this is login. This is net banking. I'm doing login for the net banking. Continue to net banking. I'm going to put my username and password. This is there. This is net banking. A lot of activities can be done. There is accounts, there is a fund transfer, bill payment, cards, debit card, credit card, demat, mutual fund, insurance, loans, offers. You can transfer the money, do a lot of things. I will provide you the list of the facilities which we can have. What kind of services are being provided by the banks, but these kind of services will differ from bank to bank. You can transfer the funds instantly anywhere. You can pay your bills. There is a debit card and credit card services. There is a demat kind of services. You can invest in the mutual funds. You can pay insurance installment. You can buy insurance. Loans are available. Offers are there. Lots of the things. So we will come to this later on. Firstly, we will discuss one by one. When we are using a browser, and through that we are having the facility of net banking, that is called internet banking. On the other hand, if we are going to the mobile and having a app of a bank, that is called mobile banking. Both are different. Is it clear? So firstly, we will discuss a little bit about the banking system. Banking is very important.
the economic strength of a country depends on the efficiency of the financial system, and banks are the oldest. They play a vital role in the successful failure of the economy, and they are very important for maintaining a sound and healthy economic system of the country. Without the banking, we cannot grow. We can mobilize the funds, we will allocate the funds to the investments. They are the nerve system of the country, and banking play a very important role. It mobilizes the savings, it enlargement of the entrepreneur base, and significant increase in the banking habits. Now, there was a time IT was there in the banking sector. It was around in the years 1990. There was a technological developments in the area of telecommunication. Internet was there, and IT was there in the banking industry. Due to the IT, we were having a number of delivery channels. It was telephone banking, personal computer banking, ATMs are there, debit cards are there, credit cards are there, mobile banking is there, internet banking is there. So there was a revolution in the banking sector, and each and everybody was trying to provide these kind of services to exist in the market, to retain their customers. And with the development in the information technology, they were able to compete in the market. There was more transactions, more convenience, and lesser costing. According to survey by the Booz and Allen, I have not mentioned it here, in the 2000 around 3 or 5, they have tried to find out the costing of the various channels of the e-banking, and it was found what was the cheapest was internet banking. Even debit card is costly, credit card is costly, teller is costly. You're going to the बैंक में जाते हो, लाइन में खड़े होते हो, एक बंदा कैशियर बैठा है, उसको स्लिप देते हो, वो पैसे कराते हो, जमा निकलवाते हो, ड्राफ्ट बनवाते हो. It's a costly process. Roughly the transaction cost through the teller is around 60 rupees or 65 rupees. But when we are having some transaction through internet banking, the costing is roughly 5 or 7 rupees or lower than that. So the 1990s, the Indian banks were made efforts for the IT. First compulsion in their mind was that to face the fierce competition. We were having private bank in the market, we were having the foreign banks in the market, we were having public sector banks. There was a competition in the market, and they have to survive. So that is why they adopted the IT. It was an alternative channel. With the help of the IT, anything, anywhere can be done through the internet. Different products were there. If you are using the mobile banking, that is also through internet. If you are using the debit card or credit card, that machine is also connected with the server through internet. आप कभी एटीएम मशीन में जाना तो वहां पे देखिएगा, वहां पे भी इंटरनेट लगा होता है. अगर वो डाउन हो जाए तो you will not be able to execute the transactions. So there was e-banking. When we are doing the banking via internet through various means, it's called e-banking. So we are having now 24/7 services, 24 hours a day, 7 days a week. You can do the transaction, you can do the have this kind of facility, you can do transaction and anything, anytime. आपको रात को 1 बजे लगता है यार एफडी बनानी है, तो it's very easy. Go to the internet banking, mobile banking, और instantly within 1 minute you can have FD. आपको 3 बजे सुबह लगता है, रात या सुबह 11 बजे लगता है संडे के दिन पे, मुझे आई नीड द मनी, आई वांट टू कैंसिल एफडी. गो टू द इंटरनेट बैंकिंग, एफडी कैंसिल करा लीजिए. 2 मिनट का काम है, हार्डली 1 मिनट और 2 मिनट. So we can do a number of things with that. We can transfer the funds, we can pay the bills, we can open the bank accounts, we can have debit and credit card services, we can have investment services, we can invest in shares, we can invest in mutual fund, we can invest in insurance. You can have FD, RD online, fixed deposit, recurring deposit. You can open public provident fund, PPF account online. So these are the various products which were there for the e-banking services. These are the debit cards. Each and everybody is having credit card.
ये थोड़ा कम हो सकता है लोगों के पास। एटीएम कार्ड आजकल चलन कम है, एटीएम कार्ड को लगभग डेबिट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट वी आर हैविंग द मोबाइल बैंकिंग। व्हेन यू आर यूजिंग ए ऐप on your mobile and doing the transaction, that is called mobile banking. Tele banking, when you are getting the services through some toll free or customer care number of a bank, that is called tele banking. You can call to their number. There is are various numbers, toll free numbers, 1800 1801800. You are going to call anytime. You can have some of the services like अगर आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक गुम गया, क्रेडिट कार्ड गुम गया, तो आप you will go to the tele banking. You can call them and block your card या hot list करवा सकते, बंद करा सकते हैं. That is called tele banking. इंटरनेट बैंकिंग पे हम इन डेप्थ अभी डिस्कशन करेंगे और इसकी सर्विसेज और इसको डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा. NEFT and RTGS, and third one is IMPS. IMPS is instant. You want to transfer the money, it's an instant payment mode. IMPS ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा पैसे ट्रांसफर. IMPS में आप कभी भी किसी को जब मर्जी कर दीजिए पैसे ट्रांसफर. दिस सर्विस इज अवेलेबल 24 hours a day, 365 days a year. RTGS होता है, that is a minimum amount is 2 lakhs and maximum amount is not limit if you are going through a branch. नेफ्ट अगर आपने थोड़ा करना होता है, इनमें थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट का इशू हो जाता है, ये इंस्टेंट नहीं होते. नेफ्ट और आरटीजीएस ये बंच में जाते हैं. नेक्स्ट इज यूपीआई. यूपीआई इज पॉपुलर इन द लास्ट 3-4 years. 3-4 साल में आपको मोबाइल से या ईमेल आईडी से इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये अकाउंट आपके के साथ कनेक्ट हो जाता है और मोबाइल से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. पर टुडे वी विल फोकस ऑन द इंटरनेट बैंकिंग. तो व्हाट इज द इंटरनेट बैंकिंग? व्हेन वी आर यूजिंग द ब्राउजर, इवन ऑन द मोबाइल में भी आप ब्राउजर, आपके पास गूगल क्रोम होता है या कोई भी ब्राउजर है, आप उसके थ्रू भी इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर यूजिंग ऐप, दैट इज कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग. पुराने टाइम में क्या था? फिजिकल फैसिलिटीज, यू हैव टू गो टू द बैंक, यू हैव टू डू द ट्रांजैक्शंस. बट नाउ you can sit anywhere, have an internet connection on your laptop, on your tablet, on your mobile, use the browser, put your username and password and do the have lots of services. अब कितनी सर्विसेज बैंक देता है? बेइंतहाशा सैकड़ों सर्विसेज एंड हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज. मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा. सो एनी टाइम यू कैन डू 24 hours a day. रात को 1 बजे 2 बजे आपको कोई जरूरत पड़ जाती है किसी चीज की, अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं, भेजे जा सकते हैं इंस्टेंटली. सो यू कैन डू द ट्रांजैक्शन एनी टाइम outside banking hours from anywhere around the world. Speed is fast, cost is on the lesser side, and traditionally आप बैंक में विजिट करते थे. now no need to go to the bank. all kind of facilities are available. even you want to deposit your money, बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है. आउटसाइड द बैंक दे आर हैविंग ए डिपॉजिट मशीन, उसमें डालिए, उसी टाइम रिसीव्ड होते हैं और इंस्टेंटली आपके पैसे जमा हो जाते हैं, आपको मैसेज आ जाता है. सो इट्स ए स्ट्रेटजिक काइंड ऑफ resource. इससे what we are going to achieve efficiency, productivity, profitability, and it has totally changed the traditional way. And हाँ, range of services, internet banking services vary from bank to bank. हर बैंक अपनी अलग तरह से देता है. yes, सर्विसेज सारे दे रहे हैं. प्राइवेट बैंक इसमें ज्यादा तेज है. सरकारी बैंकों में SBI की सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों में अगर देखिएगा तो काफी वो आगे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने में. दे आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनोवेटिव सर्विसेज. What is the purpose of internet banking? Is to retain the customer and remain competitive. If you want to exist in the market, you have to be competitive, and then you have to provide those kind of services which are provided by others. So in India, ICICI was the first one to start this facility. The product name was Infinity and it was started in 1997. After that, initiative was, next one was HDFC and followed by other public and private sector banks. And what you have to do, you have to be technologically advanced and you have to have that kind of setup, which may be costly at the start of the time, but with the passage of time, bank is going to get benefit out of it.
So now the customers are moving through internet banking. Basic functions are available, advanced functions are available, lots of services are there. You can transfer the money, you can pay the bills, mobile, DTH, broadband, electricity, school fees, everything. Insurance, you want to buy insurance, you want to invest in shares, loan services are there, e-commerce services are there, you can pay your taxes online. This is very easy. So there are basically two kinds of services are there. One is a informational, second is a transactional. जब हम इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं होता कि आप ट्रांजैक्शनल सर्विसेज लीजिए, आप इंफॉर्मेशनल या बेसिक सर्विसेज ले सकते हैं, बेसिक के साथ साथ ट्रांजैक्शनल भी ले सकते हैं. अगर आपने बेसिक ले लिया, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अकाउंट स्टेटमेंट देखनी है, आप वो देख सकते हैं. आपने कोई बेसिक सी चीजें, चेक बुक ऑर्डर करनी है, वो घर पे आ जाएगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं है. आपने अपने बैलेंस देखने हैं, ट्रांजैक्शन देखनी है, स्टेटमेंट्स देखनी है, ऐसा कुछ कर सकते हैं. लेकिन ट्रांजैक्शनल मींस ट्रांसफरिंग ऑफ मनी, वो वाली अगर आप कहेंगे तो मिल जाती है. ठीक है जी, ये आपकी अपनी सुविधा है, चॉइसेस है. Even when I started using internet banking, even I started from informational. तो basically वहां से कई बार बंदे को डर लगता है. Now I am using internet banking I think for the last 15-16 years. तो अब इसकी थोड़ी आदत सी होगी, अब ट्रांजैक्शनल यूज करते बड़े साल हो गए और कोई गड़बड़ भी नहीं हुई. तो अगर मेजर कैटेगरीज में बांटे तो किस तरह की सर्विसेज हमें मिलती हैं इसके अंदर. डेबिट कार्ड की सर्विसेज है, क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज है. डेबिट कार्ड में क्या, यू कैन डेबिट कार्ड आपने नया इशू कराना है, इफ यू वांट टू इशू, इफ यू वांट टू ब्लॉक डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स आपने रिडीम कराने हैं, डेबिट कार्ड का पिन चेंज करना है, कुछ भी कर लीजिए. क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, नया इशू करना है, अपनी लिमिट बढ़ानी है, you want to change the pin, if you want to block your card, if you want to reissue your card, lots and lots of or services are there. Demats, if you want to sell purchase securities, if you want to purchase shares, demat is there. Mutual fund, if you want to buy some mutual funds, you can buy it online through internet banking, it's there. Utility bill payments, if you want to do पानी का, बिजली का बिल देना है, ऑनलाइन शॉपिंग, DTH, मोबाइल, बिजली, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एवरीथिंग रिचार्ज करना है, एवरीथिंग इज देयर. यू कैन ट्रांसफर द फंड्स, फंड एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं. इंश्योरेंस की सर्विसेज है, यू कैन बाय इंश्योरेंस, यू कैन पे योर प्रीमियम, यू कैन ओपन फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, PPFs, न्यू अकाउंट्स, यू कैन रिडीम दैम, आप उनको कैंसिल भी कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है. लोन सर्विसेज आर देयर, आप लोन अप्लाई कर सकते हैं. लोन का अगर आपको एलिजिबल है, आपको आता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अकाउंट समरीज आप निकाल सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट पिछले 10 साल की स्टेटमेंट निकाल मिल जाएगी. फॉरेक्स कार्ड की सर्विसेज होती हैं, अगर आप बाहर जाते हैं तो उसमें ले सकते हैं. और KYC करना है, मिसलेनियस सर्विसेज आर देयर. KYC, आधार कार्ड अपडेट करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डालनी, चेक बुक रिक्वेस्ट, चेंज ऑफ एड्रेस, TDS सर्टिफिकेट्स, पे वांट टू पे द टैक्सेस. इवन अगर आपने अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच शिफ्ट करना है, फ्रॉम वन मंथ टू अनदर, यू कैन डू इट ऑनलाइन, नो नीड टू विजिट एनीवेयर. अगर हम इसका ताना बाना जोड़े तो टोटली शायद 300, 350, 300 to 400 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर. These are the broader categories. Is it fine? Next. अभी इसका फायदा क्या है हमें. इंटरनेट बैंकिंग का फायदा कस्टमर को भी है, बैंक को भी है. अभी कस्टमर को क्या बेनिफिट्स है. अकाउंट्स खोलना बड़ा आसान है, इंटरनेट बैंकिंग पे गए, खाता रात को खोला, FD खोल ली, जब मर्जी बंद कर दो. कन्वीनियंस है, यू कैन डू दिस सर्विस एनीवेयर, ऑफ कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आराम से यू कैन मॉनिटर योर अकाउंट्स, यहाँ पे देखिए, यू कैन सी योर बैलेंसेस, you can easily apply your loans, you can purchase the stock securities through Demat. It's very efficient, it's very mobile, transaction cost is very low. अगर कहीं at somewhere if you are making payment through, आप बिजली का बिल ऑनलाइन दीजिए, अगर आप जाएंगे, if you go to the Punjab State Power Corporation Limited site, अगर आप डेबिट कार्ड से देंगे, they will charge something, 1%, 1.5%, आधा % एग्जैक्टली ध्यान नहीं है. क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, गेन दे विल चार्ज. अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे तो फ्री होगा, देख लेना. वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, यू सिट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हैव इंटरनेट,
you can use this service, internet banking. You can pay the bills, it saves the time, no need to visit the branch. मुझे नहीं लगता मैंने पिछले तकरीबन 7, 8, 10 महीने में कभी ब्रांच जाने की कोशिश करी हो। एक बार जरूरत पड़ी थी, जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी थी, जरूरत ही नहीं पड़ी। यूज करता हूँ काफी एक्टिवली इसको, तो यू कैन हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन एनी टाइम, जो आपको जानकारी चाहिए मिल जाती है और इंस्टेंट होता है। बैंक्स को क्या फायदा है? क्लरिकल काम कम पड़ेगा, लोग घर पे काम करेंगे, नो नीड टू विजिट द ब्रांच, रश कम होगा। आजकल कोरोना के टाइम में तो ये और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है कि वन शुड अवॉइड द क्वाड, क्वालिटी सर्विसेज आर देयर, इट्स वेरी स्पीडी, इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर हो जाते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एबिलिटी टू असेस द लार्ज मार्केट, ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज ऑन द लोअर साइड, you can compete in the market with this kind of up-to-date services because everybody is providing, every government, private bank is providing. So according to the market, you are improving, our image will be better, customer knowledge is better now, they want these kind of services, and you can have a good brand, you can have a good profitable growth with the help of this internet banking. अभी इंटरनेट बैंकिंग और दूसरे बैंकों में फर्क हो सकता है। यस, अगर आप एसबीआई की यूज करें बड़ी अच्छी है, मैं एचडीएफसी की यूज करता हूँ बड़ी अच्छी है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में दिक्कत आ जाती, कहीं चलते चलते रुक जाती, कभी नहीं चलती, वो फिर भी मुश्किल देती। द क्वालिटी ऑफ द नेट बैंकिंग आल्सो वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा एक्सपीरियंस कोई उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन एचडीएफसी और एसबीआई बड़ी अच्छी है। Okay, you can attract new customers, you can increase your efficiency, your reputation will be better, you can retain your customer, you can increase your market share, increase your sales, profit margin can be better, and you can have good customer relationships. हमें वो सब सर्विसेज देनी पड़ेंगी मार्केट में जो दुनिया देती है, और इंटरनेट बैंकिंग आज की डेट में ऐसी नहीं है कि कॉमन ही है, और इसमें दिखाते हैं कैसी सर्विसेज होती है, हमें सीखने को मिलेगा। और मैं प्रैक्टिकली आपको एक आईपीओ लगा के भी दिखाऊंगा। आजकल एक आईपीओ चल रहा है एमटीआर टेक्नोलॉजीज का, कि कितना टाइम लगता है ऑनलाइन ये सर्विसेज देने में। इस तरह की मुश्किलें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग। यस, स्टार्टअप कॉस्ट इज हाई, बट ये वो वाला फेस निकल गया क्योंकि सब बैंकों ने लगा लिया। बट यू हैव टू पे फॉर द ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। डाटा सारे का सारा पड़ा हुआ है किसी और जगह पे। जितना एसबीआई का डाटा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो बॉम्बे में एक जगह है, किसी ने सुना हो, बेलापुर, इट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द मुंबई, वहां पे सारा इंडिया का डाटा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। मैंने एक बार विजिट भी किया था बेलापुर, इट्स अराउंड मुंबई। सिक्योरिटी इश्यूज है, हैकिंग हो सकती है, किस तरह की हैकिंग होती है वो भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, किस तरह के मसले आ सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस, हाँ, कुछ कुछ चीजें अभी भी नहीं की जा सकती। अगर कैश जमा कराना है तो इंटरनेट बैंकिंग से तो होगा नहीं, या तो बैंक विजिट आप करेंगे, या आप उसकी मशीन जो बाहर लगी होती है वहां पे हम डिपॉजिट करा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर की हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब कितना वो आसान है ये देखते हैं जरा। सर्विसेज किस तरह की इसमें मिलती हैं ये देखिए जरा। हमने जैसे बोला था अलग अलग बैंकों का, तो ये डेबिट कार्ड सर्विसेज है। क्या अप्लाई कर सकते हो डेबिट कार्ड का स्टेटस हम देख सकते हैं, डेबिट कार्ड अपडेट कर सकते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं, पिन चेंज करना है, डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग ब्लॉक करना हो, नया पिन जनरेट करना, रीजनरेट करना, ब्लॉक कार्ड को री इशू करना। आप अपनी इंटरनेट लिमिट भी इसमें फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आप इंटरनेशनली उसको यूज नहीं करते, तो उसको आप ऑफ करके रखिए। क्योंकि कभी भी अगर आपको ध्यान होगा, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी नहीं आता। अगर ये आपका डाटा हैक हो गया, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का, बंदे ने किसी ने इंटरनेशनली यूज कर लिया, तो कोई ओटीपी नहीं आता। तो इसका वे आउट क्या है, आप इंटरनेट बैंकिंग पे जाइए, इसकी जो यूजेज है इंटरनेशनल, उसको बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है यूज होना है तो उसकी लिमिट आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल यूजेज ज्यादा से ज्यादा 10,000 का हो, 15,000 का हो, ऐसे करके। डोमेस्टिक लेवल पे कितना यूज करना हम ये भी फिक्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स
पे, जैसे अमेजोन से खरीदारी करनी है तो उस पर कितना कर सकते हैं। हम कार्ड्स को टेम्परेरी भी ब्लॉक करा सकते हैं, ऐसी बड़ी सर्विसेज है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्रेडिट कार्ड, नया अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड को लिंक करना है, उसकी स्टेटमेंट्स देखनी है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, आपने उसकी अमाउंट को ईएमआई बनाना है, क्रेडिट कार्ड को अपडेट करना है, एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेना है, अनबिल्ड ट्रांजैक्शन देखनी है, अपनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, रिवार्ड पॉइंट देखना चाहते हैं, रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कराना चाहते हैं। ये मैंने अभी करवाए थे, पैसे मिलते हैं जो जितना डी रजिस्टर कराना चाहते हैं, ऑटो पे की ऑप्शन लगाने, तो बड़ी सर्विसेज है। इसके अलावा ये देखिए सब डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की चल रही है। फिर डीमैट की आईपीओ आप हम अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुकलेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोन ले सकते हैं, सिक्योरिटी के अलावा ट्रांजैक्शन देख सकते हैं अपनी, ये बड़ी डीमैट की सर्विसेज चल रही हैं। फिर म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं, सिप लगा सकते हैं, ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, बिजली का बिल दे सकते हो, मोबाइल, डाटा कार्ड, डीटीएच, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, गैस, वाटर, टैक्स, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, रेंट, लोन, एजुकेशन, म्यूचुअल फंड, डोनेशन ऑनलाइन दे सकते हो। आप यहाँ पे बैठे हो, आपका मन कर रहा है कि मैंने हरमंदर साहब में, अमृतसर में पैसे देने हैं, ऑनलाइन जाइए, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर दीजिए। आपको लगता है आपने वैष्णो माता में पैसे भेजने हैं, वहां पे उनके खाते में जाइए, वहां पे क्लिक करिए, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर दीजिए। मैंने ट्राई किया है, आपने सिद्धि विनायक पैसे भेजने हैं ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग से दे दीजिए। डोनेशन बड़ी आम हो गई है। आपको ये सर्विसेज बुकिंग करनी है, रेल टिकट के पैसे देने हैं, गूगल पे के पैसे देने हैं, मेट्रो कार्ड अपडेट करना है, देखिए इतने तरह की सर्विसेज है। हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन द सेम बैंक, और बैंकों में आईएमपीएस के थ्रू कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो। ठीक है जी, सेविंग अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे में, वर्चुअल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसी बड़ी सुविधाएं हैं। और बेनिफिशियरी ऐड करने पड़ते हैं अगर आपने पैसे ट्रांसफर करना है, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये सारी फंड ट्रांसफर की थी। इसमें आपने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा खोलना है, खाता, पैसा डालना है, आपने पीपीएफ में पैसा डालना है, सब यहाँ से कर सकते हो। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, जर्नल इंश्योरेंस लेना है, पॉलिसीज लेनी है, सारी यहाँ पे पॉसिबल है। एफडी वगैरह खोलनी, एफडी बंद करनी, एफडी पे ओवरड्राफ्ट लेना, ये सब मिल जाता है यहाँ पे। तो आरडी खोलनी है, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट बंद करनी है, वो हम कर सकते हैं इसमें। पीपीएफ खोलना है, बंद करना है, पैसे ट्रांसफर करने हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब कर सकते हैं। Excuse me, sir. यस। Sorry to interrupt you. हाँ हाँ। काइंडली आप स्क्रीन शेयरिंग ना एक बार रोक के दोबारा कर देंगे, क्योंकि ओके, कईयों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं देख रहा हूँ जी। हाँ जी मैम, हाँ जी, थैंक यू। कहाँ पे? ओके ओके शेयर। सर, थैंक यू, थैंक ओके, यू, थैंक यू। ये अब नीचे कैसे जाएगा? चलिए, तो इसमें मैंने फंड ट्रांसफर, इसमें इतने तरह की सर्विसेज हैं। लोन को रीपे करना चाहते हो, स्टेटमेंट्स देखना चाहते हो, आप अकाउंट स्टेटमेंट देखनी है, मिनी स्टेटमेंट, 10-10 साल की स्टेटमेंट, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। टीडीएस के सर्टिफिकेट लेने हैं, वो सब इसमें आ जाता है। ये ऐसे बेइंतहाशा तरह की है। और मिसलेनियस में केवाईसी करना है, 26 ईएस देखना है, डायरेक्ट टैक्स पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, इंटरनेट बैंकिंग, सॉरी, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। केवाईसी अपडेट करनी है, पैन नंबर ऐड करना है, ये सब इसमें है।
ये तकरीबन 22 पेजेस की लिस्ट है। ये मैं आपको अब इसके बाद प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। एलपीजी के सब्सिडी, अपना अकाउंट ट्रांसफर करना है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। चलिए अब मैं आपको इसको लाइव करके दिखाता हूँ, सर्विसेज यूज करके। हम HDFC बैंक की पहले सर्विसेज दिखाता हूँ आपको। HDFC बैंक पे गए, इंटरनेट बैंकिंग खोली हमने। तो IPO आप समझते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। आज एक MTR कंपनी है, उसका आया हुआ है। मैं उसको लगा के दिखाता हूँ। पुराने टाइम में अगर आपने IPO लगाना होता था शेयर मार्केट में, जब कंपनी नई लॉन्च करती है अपनी शेयर, तो उसमें लगाने के लिए आपको बैंक में जाके चेक जमा कराना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, वो सारे का सारा सबमिट होता था वहां पे। फिर आपका किसी और अकाउंट में पैसे चले जाते थे, बड़ी दिक्कत थी। फिर आपको पता नहीं IPO आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर पैसे, आपका चेक वापस आएगा, फिर उसको कैश कराओगे। अब बड़ा आसान है। इंटरनेट बैंकिंग पे गए हम, यूजर नेम पासवर्ड लगाया। अब ये देखिए, ये फोटो की भी एक रेलेवेंस है। नजर आ रही है एक फोटो? हाँ जी। Yes, sir. अगर Yes. ये नजर आ रही है, इसका मतलब ये है जब हम ट्रांजैक्शनल सर्विसेज लेते हैं तो तब ये अपनी एक फोटो लगवाने की आपको गुजारिश करते हैं बैंक वाले कि आप अपनी एक फोटो लगवा दीजिए। उसका लॉजिक क्या है? कल को मान लीजिए कोई बंदा HDFC बैंक की कोई ऐसे ही अपनी फर्जी साइट बना के आप यूजर नेम पासवर्ड उसमें डाल दो, तो वो आप वहां से हैक कर ले और आपके पैसे का गलत इस्तेमाल हो, ये दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए ये आप अपनी एक फोटो और एक मैसेज जो लिखा हुआ है लाइफ इज गुड और एक फोटो, ये इसलिए ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये साइट ओरिजिनल है कि नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए मेरा यूजर नेम पासवर्ड अगर आपको पता चल भी गया, आप तब भी उसको खोल पाएंगे? तो इसके भी सिक्योरिटी इश्यूज हर बैंक के अपने अपने हैं। कई बैंकों में अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड पता है, HDFC बैंक में खास तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा में, फिर भी आप अगर नई जगह से नए डिवाइस से आप यूज करेंगे और यूजर नेम पासवर्ड लगाएंगे तो भी नहीं आपका चलेगा। वो पहली बार जब आप नई जगह से आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे OTP मांगेगा। अगर OTP जब आप लगा देंगे आपके मोबाइल पे आएगा तब वो चलेगा, चाहे दूसरे बंदे के पास यूजर नेम पासवर्ड हो। लेकिन SBI में ये सुविधा नहीं है। अब कई बैंकों ने ये सुविधा दी है, जब भी कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे इंटरनेट बैंकिंग खोलता है तो वो उसको मैसेज चला जाता है। तो कई बैंक ये सुविधा देते हैं, कई नहीं देते। देखिए अकाउंट सेक्शन में गए हम, IPO कैसे लगाएंगे, ये सर्विसेज अलग अलग तरह की। उसमें हमने बात करी थी डीमैट सर्विसेज की। शेयर लगाए जा सकते हैं, तो मैं लगा के दिखाता हूँ। मैंने एक्चुअली लगाने ही थे तो मैंने आपके लिए रोक लिया। आज लास्ट डे है इशू का, 3 दिन के लिए इशू आया हुआ है। इशू का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज। ये दिखाता हूँ आपको। MTR टेक्नोलॉजी, डीमैट की मैंने बात करी थी कि डीमैट सर्विसेज होती हैं। ये इसकी डिटेल है जी। 3 मार्च को इशू खत्म हुआ, 3 मार्च को शुरू हुआ, 5 मार्च को ये खत्म होगा। 575 रुपए का शेयर है, 26 शेयरों का लॉट है। तो ये डीमैट में हम इंटरनेट बैंकिंग से अब इसको कैसे खरीदेंगे? तो व्हाट वी विल डू, हम फंड अकाउंट्स में गए, अकाउंट्स में इधर रिक्वेस्ट में गए, रिक्वेस्ट की बॉटम में है, ये देखिए IPO राइट इशू, राइट IPO/राइट इशू। इसके अंदर हम जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये आगे लेके जा रहा है हमें। तो यहाँ पे ये MTR टेक्नोलॉजीज है, इसमें हमने करा अप्लाई। अप्लाई कैसे किया? अब इसके डिटेल भरनी पड़ेगी। हम रिटेल इन्वेस्टर है। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर, एक हो जाता है HNI। HNI वो बंदे हो जाते हैं जिन्होंने 2 लाख से ऊपर लगाने पैसे। रिटेलर वो हो जाते हैं जिन्होंने 2 लाख से कम लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए कितने शेयर्स? 26 शेयर का लॉट है तो हम लगा रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। मैंने रेट कट ऑफ उठा लिया, 575 का शेयर है, 26 शेयरों का 14,950 का बन गया। नाम आ गया, पैन नंबर पहले से है, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, वो हमने डाल दी।
फादर नेम है वो डाल दिया। अकाउंट आपका कौन सा है? इंडिया में डीमैट अकाउंट दो तरह के रहते हैं, या तो सीडीएसएल होता है, या होता है एनएसडीएल। तो ये सीडीएसएल का अकाउंट था, तो इसमें हमने अकाउंट नंबर भरा। अकाउंट नंबर मैं देखता हूँ। यस, ये डीमैट अकाउंट नंबर भरा मैंने। प्रोसीड। आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं? यस। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसको हम ओके कर देते होते हैं। यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ गया ये, आई एग्री। ये खुल गई विंडो। के विंडो क्या कहती है देखिए, कि आपको 14,950 रुपए ब्लॉक करने पड़ेंगे अगर आईपीओ ने आपने अप्लाई करना है। तो हमने क्या कर दिया, सबमिट। ये मेरा आईपीओ लग गया। बिड सस्पेंड, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां से हम अपना चेक कर सकते हैं ऑर्डर बुक से। एमटीआर टेक्नोलॉजीज जो हमने लगाया था ये आ गया। 26 शेयर 575 रुपए के। अब ये किया क्या इन्होंने, मेरे खाते में से 14,950 रुपए ब्लॉक करके साइड पे रख दिए, और कहीं चेक लगाने की जरूरत नहीं, ये पैसे ब्लॉक रहेंगे। या तो शेयर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर शेयर मिल गए तो आपके खाते में से 14,950 रुपए कट जाएंगे। अगर नहीं मिले तो ये पैसे आपके वापस आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा आईपीओ हो गया। ये डीमैट सर्विस थी जो मैंने आपको बताई प्रैक्टिकली। लॉग इन टू नेट बैंकिंग। ये देखिए हम अपने अकाउंट पे जा रहे हैं। अब ये अकाउंट से पैसे लगाए थे, देखिए 39,000 था, 14,000 ब्लॉक हो गया जो आईपीओ लग गया। तो इतना आसान हो जाता है काम। और हम क्या कर सकते हैं मैं इसमें दिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन द आईसीआईसीआई। अगर आपने एचडीएफसी टू एचडीएफसी करना है, आईएमपीएस इंस्टेंट 365 डेज 24 आवर्स ए डे और 7 डेज ए वीक। दूसरे बैंक को करना है, नेफ्ट करना है, आरटीजीएस करना है, आईएमपीएस करना है, कभी भी किसी भी टाइम करिए। एक और है इसमें फैसिलिटी, कार्डलेस कैश विड्रॉल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कुछ बैंकों ने शुरू करी है, बड़ी आसान भी है। मान लीजिए आपका कोई जान पहचान वाला कोई किसी जगह पे फंस गया है और उसके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है और उसको पैसे की जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी पैसे भेज सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कार्डलेस कैश विड्रॉल में गए, उस बंदे का नाम नंबर भरा, और इसने पूछ लिया आप कितने पैसे। इसमें कैशलेस कैश विड्रॉल में तकरीबन मुझे लगता है 10,000 तक हम भेज सकते हैं आसानी से। वो बंदा चंडीगढ़ में फंसा बैठा है, रात के 1 बजे है, तो उसको बोलेंगे एचडीएफसी की मशीन पे चला जा, वो चला जाएगा। हम यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद उस कितने पैसे उसको ट्रांसफर करने हैं वो लिख देंगे। जब वो इसके बाद उसके पास एक कोड चला जाएगा, वो एचडीएफसी की मशीन में जाएगा, वहां पे एक बटन होगा कैशलेस कार्डलेस कैश विड्रॉल, उसमें दबाएगा, वो मोबाइल नंबर अपना डालेगा, और कार्ड कूड की कोई जरूरत नहीं है। उसके मोबाइल पे जो ओटीपी वगैरह है वो डाल देगा। उसके बाद जितनी अमाउंट हमने उसको भेजी है वो निकाल सकता है, उसको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। ये
HDFC मैंने भी शुरू कर दिया है, ये SBI भी कर रहा है। किसी बंदे को पैसे भेजने हैं, उसके पास कार्ड भी नहीं है, तो फिर भी पैसे आप निकाल सकते हो किसी भी समय। ये फंड ट्रांसफर की सारी फैसिलिटीज थी। इसमें IMPS आजकल लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंस्टेंट होता है। आपने इसको पैसे ट्रांसफर करने देखिए कितना आसान है, किस खाते से भेजने, किसको भेजना है, ये मेरा नंबर है जिन मेरा डाला हुआ है, कितने पैसे भेजने हैं, चलिए मार्क्स डाल दीजिए। इस अकाउंट से इस बंदे को मुझे पैसे आ रहे हैं 1 रुपया, कंफर्म कर दिया। इसके बाद आपके पास अब ये सेफ कैसे है, या तो मोबाइल पे ईमेल पे OTP आएगा या आपके मोबाइल नंबर पे, दोनों में से जो मर्जी ऑप्ट कर लीजिए। मैंने इसको ऑप्ट कर लिया। अब ईमेल पे OTP आएगा तो वो हम डालेंगे तो हो जाएगा। OTP मोबाइल ईमेल पे मैंने डाला था, वो आ गया है, ये है। पैसे ट्रांसफर हो गए, 1 रुपया चला गया। अब किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसमें एक चीज और भी है कि उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। पहले उसको ऐड करोगे एज ए बेनिफिशियरी, तो हर बैंक का एक अलग तरह का कूलिंग टाइम होता है। जैसे HDFC में अगर किसी नए बंदे को मैंने ट्रांसफर करने हैं पैसे, तो मुझे यहाँ पे जाके ये बेनिफिशियरी की लिस्ट है, देखिए ये 2 बंदे बेनिफिशियरी इसमें बने हुए हैं। अगर नए बंदे को ऐड करना है मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद ये 30 मिनट्स तक, आधे घंटे के बाद ही पैसे ट्रांसफर होंगे। तो ये अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओगे तो 4 घंटे हैं, किसी बैंक में 3 घंटे, इसको कूलिंग पीरियड बोल देते हैं। SBI में भी शायद 4 घंटे है, HDFC आधे घंटे के बाद करना, पहले आप ऐड करोगे आधे घंटे के बाद पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ये इसमें होता है। कितने बेनिफिशियरी हैं, कोई RTGS आज तक आपने कितनी करी, IMPS के पैसे कितने भेजे, सब आप देख सकते हैं। थर्ड पार्टी ट्रांसफर, आप वीजा कार्ड को पे कर सकते हो, ये सारा इसमें है। अकाउंट्स की फैसिलिटी में देखिए आप क्या कर सकते हो, एक बैंक अपने खाते से दूसरे खाते में पैसे भेज सकते हो या FD खोल सकते हो। ये देखिए 5 करोड़ तक की आसानी से। क्या करना है FD खोलने के लिए, विड्रॉल FD है, ठीक है जी। किस खाते से पैसे निकालने, इस खाते से पैसे निकालने, ठीक है जी। रेगुलर FD के 5 ईयर टैक्स FD, ये भी बता सकते हो। 5 ईयर टैक्स FD है तो वो नहीं कटेगी क्योंकि उसका लॉक इन पीरियड 5 साल का है। रेगुलर FD में गए, FD बनानी है, ठीक है जी। कितने की, पता नहीं 100 रुपए की उठाएगा कि 5,000 की उठाएगा। तो FD रेट्स, ब्याज का रेट क्या चलता है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये अभी निकल के आ जाएगा। ये लीजिए जी, कितने दिन पे कितना ब्याज है, ये सब लिखा हुआ है। FD का ब्याज 1 साल का 4% भी नहीं रह गया। तो मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं कि 5,000 रुपए की FD करनी है, कितने दिन की करनी है, तो ये सिलेक्ट डिपॉजिट टाइप, मंथली लेना चाहते हो कि ये चाहते हो कि साल की बने, तो उसके बाद अपने आप मिनिमम ये 6 महीने की बनेगी। यहाँ पे ये देखिए डिपॉजिट पीरियड मैं मान लेता हूँ 12 महीने। अब ये देखिए कौन सी FD कौन से खाते से निकालनी है, कितने की FD, ब्याज देख लिया कितने टाइम की, 6 महीने से 120 महीने तक की FD। 5,000 की बनाई, मैं मान लीजिए कहता हूँ 12 महीने की बना दीजिए। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रिन्यू कर दीजिए। नॉमिनेशन लेना चाहते हैं, हाँ लेना चाहता हूं। किसको नॉमिनी बनाना है, पुराने बंदे को बनाना है या जिसको भी बनाना है आप उसका नाम डाल दीजिए। ठीक है जी, किसको नॉमिनी बनाना है, ये सारी डिटेल्स आ गई, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको कर दीजिए, FD बन गई। इजी है, ये FD कहते हैं जी, ऐसी बनेगी, आपको दिखा दिया।
ठीक है जी। उसके बाद आपने आरडी खोलनी है, रेकरिंग डिपॉजिट हर महीने जिसमें किस्त है, यहां से जाइए किस खाते से खोलनी है, कितनी किस्त देनी है, 1000 रुपए की किस्त देनी है, इसके ब्याज के रेट क्या है, देखिए सब लिखा हुआ है। एफडी और आरडी के रेट सेम रहते हैं। बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ब्याज का रेट लिखा हुआ है। कितने टाइम के लिए करानी है, 1 साल के लिए करानी है, 1 साल 3 महीने के लिए करानी है। मेच्योरिटी पे क्या करें, खाते में डाल दें कि उसकी एफडी करा दें, और वो एफडी होगी तो कितने टाइम की होगी, बस ये करिए हो गया। आरडी खोलनी, कैंसिल भी ऑनलाइन ऐसे ही होगी, मैं आपको दिखाता हूं। लिक्विडेट फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कैंसिल करना है, जो बना होगा लिस्ट आ जाएगी, जिसको कैंसिल करना आप दबाइए, ऑन दी स्पॉट आपके खाते में पैसे, बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई साइन वेरीफाई नहीं करने, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी। आरडी कैंसिल करनी है, ये देखिए आरडी कैंसिल कर सकते हैं। एफडी का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, एफडी बनी है तो उस पर ओवरड्राफ्ट यहाँ पे मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी, ये कर सकते हो। उसके बाद ओवरड्राफ्ट कैंसिल करना है तो ये रहा। और क्या फैसिलिटीज हमारे पास है, ये देखिए। अकाउंट बैलेंस चेक करना है, हम कर सकते हैं। 2 महीनों का देखना है, पिछले साल का देखना है, 10 साल की स्टेटमेंट लेनी है, बैंक जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डालो, प्रिंट आउट निकाल लो। फिक्स डिपॉजिट की समरी, एफडी कितनी है, ये समरी आ जाएगी सामने, ये देखिए पढ़िए। रेकरिंग डिपॉजिट कितनी है, समरी बना लो। कोई चेक लगा है उसका स्टेटस चेक करना है, ये देखिए चेक का स्टेटस डाल दो। टीडीएस इंक्वायरी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसकी इंक्वायरी करनी है, वो हो जाए, 1 साल की, पिछले साल की। कोई और इंक्वायरी करनी है किसी चीज की, इसके अंदर मेल बॉक्स भी होता है, आपको स्पेशल ईमेल्स आती हैं। और इसके अलावा कोई टैक्स व्यू, टैक्स क्रेडिट 26 देखना है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो वो आ जाता है। रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई जीएसटी नंबर ऐड करना है, व्यू करना है, सिविल स्कोर चेक करना है, ये पेड सर्विस है, नहीं तो करके दिखा देता। केवाईसी डिटेल अपडेट करने हैं, स्टॉप पेमेंट और चेक करना है, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे डालिए चेक नंबर, डालिए एंड नंबर, पूरी की पूरी कॉपी है, लॉस्ट होगी, डालो, बंद हो जाएगा। बैंक में जाओगे, एप्लीकेशन लिखोगे, मैनेजर नोट करेगा, वो सिस्टम में डालेगा, तब कहीं जाओगे। चेकबुक इशू करानी है, कितना जी, ये खाते की कर दो, बस हो गया, चेकबुक इशू होगी हमारी। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ये भी घर बैठे खाते से बनाना है, किसके नाम का बनाना है, कितनी अमाउंट का बनाना है, आप ब्रांच से ले सकते हैं, आपके घर में बाय पोस्ट आ जाएगा। पैन नंबर अपडेट करना है, ईमेल स्टेटमेंट्स देखनी है, ईमेल स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन, फिजिकल कॉपी नहीं लेनी, आपकी ईमेल पे स्टेटमेंट आ जाए महीने बाद, 2 महीने बाद। आप इंटरेस्ट चेक करते हो, मेरे को कितना ब्याज मिला, ये सब सामने है, इंटरेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है ये सर्टिफिकेट लेने के लिए। लॉकर की नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पे है, लॉकर की अवेलेबिलिटी तक देख सकते हैं। और टैक्स वगैरह पेमेंट करना है, चालान पे करना है, सारा कुछ हो सकता है, ये देखिए। उसके बाद आप बिल्स पे कर सकते हो, कौन से, बिजली का, पानी का, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज, गैस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, एवरीथिंग इज देयर। चैरिटी डोनेशंस देनी है, वो भी इधर पड़ी है। आपने किसी रिलीजियस जगह पे जहाँ पे आपका मन है आप दे सकते हो, ऑनलाइन यहीं पे बैठे, रसीद मौके पे ही आ जाएगी। ये देखिए बिजली का बिल मैंने किया हुआ था, गोल्ड लेना है वो भी ऑनलाइन ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, पोस्ट पेड, डीटीएच, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, गैस, वाटर, टैक्स पे, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, किसी भी कंपनी के पैसे देने हैं, रेंट, लोन, एजुकेशन, कई स्कूल कॉलेजों के पैसे ऑनलाइन जाते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदना है, डोनेट करना है, ये देखिए डोनेशन, एड इंडिया, कैंसर, चाइल्ड केयर, कंसर्न, गिव इंडिया, हेल्पेज, महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर, पेटा, पीएम केयर फंड, प्राइड, सेव, श्री सिद्धि विनायक टेम्पल वाइज। इसके अलावा हर बैंक का थोड़ा अलग अलग टाई अप रहता है। तो आप उस पे भी जा सकते हैं, जैसे मैं श्री एसजीपीसी की साइड पे जाइए, आप उनको डोनेट करना चाहते हैं, वैष्णो माता में किसी भी जगह पे,
सब जगह के लिंक होते हैं, वहां पे जाइए, इंटरनेट बैंकिंग से पैसे दे दीजिए। ठीक है जी, ये देखिए ऐड बैलेंस। और एलपीजी, फास्टैग, केबल टीवी, हॉस्पिटल के पैसे, सरकारी पानी का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउसिंग सोसाइटी, ये सब यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल। कार्ड्स में आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, लोन लेना है, ईएमआई करानी है, सब इधर है। आप इसमें अकाउंट इंफॉर्मेशन देख सकते हो, अनबिल्ड ट्रांजैक्शंस, अगर कोई स्टेटमेंट देखनी अब तक कितने हमने पैसे खर्च कर लिए, रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, मैंने अभी रिडीम कराए थे। रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, उसको अपग्रेड करना है, नया कार्ड अप्लाई करना है, उसको डी रजिस्टर करना है, देखिए कितनी तरह की सर्विसेज है। डेबिट कार्ड अगर अपग्रेड करना है, इवन रात को गुम हो गया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे रिक्वेस्ट दे दीजिए, बंद हो जाता है। ये देखिए, ये डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग, हॉट लिस्टिंग मीन ब्लॉकेज। क्रेडिट कार्ड बंद करना है, चोरी हो गया, यहीं पे होती है रिक्वेस्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये रिक्वेस्ट में होगा लिमिट एनहांसमेंट, क्रेडिट कार्ड, ऑटो पे कार्ड, कार्ड का हॉट लिस्टिंग है, घर बैठे बंद करा दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट में नया इशू कराना है, ब्लॉक करना है, जो मर्जी करिए। ये डीमैट का मैंने दिखाया था, डीमैट की सर्विसेज लेनी पड़ती है, यहाँ पे सारा लिंक एक्टिव हो जाता है। आपने शेयर खरीदने हैं, शेयर बेचने हैं, जो मर्जी करते रहिए, यहीं से इंटरनेट बैंकिंग से ही पैसे जाते रहेंगे। आपने म्यूचुअल फंड कोई नया आया है, परचेज करना है, बेचना है, स्विच करना है, सिप लगानी है, देखिए सारे पड़े हैं। अपने कोई ऑर्डर का स्टेटस देखना है, पुरानी ट्रांजैक्शन, कितने यूनिट है आपके पास, इट्स देयर। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कोई देनी है, इट्स देयर। ओके, यू वांट टू गो फॉर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है जी, ये देखिए सारे इंश्योरेंस पड़े हैं हमारे पास। प्रोटेक्शन, हेल्थ, चाइल्ड, सेविंग, रिटायरमेंट, किसी भी कंपनी का लेना है, सब इन्होंने ऑप्शंस दी होती है। इनके टाई अप्स आदित्य बिरला, एचडीएफसी अर्गो, मैक्स बुपा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये होती हैं अपनी जो प्रधानमंत्री की योजनाएं, वो भी सारी इधर पड़ी होती हैं, वो भी आप ले सकते हो। लोन्स की समरी देखनी है, अगर उसी बैंक से लोन है, पेमेंट्स करनी है, गोल्ड लोन लेना है, उसकी कुछ भी करना है, इंक्वायर करना है, कोई ट्रांजैक्शन, लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है, कोई क्वायरी है, सब कुछ यहीं पे है। ऑफर्स, अगर कोई ऑफर्स है आपको स्पेसिफिकली, वो भी तो होती है। आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल बदलना चाहते हैं, इंस्टा अलर्ट्स कैसे रहें आपको, ये मैं दिखाता हूं। कब आपको मैसेज आए, चेक बाउंस का एसएमएस आए कि ना आए, कितनी ट्रांजैक्शन का आपको एसएमएस आए, ईमेल आए, कब आए, या मैसेज, ये सारी की सारी, बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं ये सारी चीज। एक मैंने आपको बोला था डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की यूजेज वगैरह, देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड तो इनका होगा, यस, रिक्वेस्ट सेट यूसेज लिमिट्स, ये देखिए इनके साथ क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं है। यहां से हम वो सारी यूसेज को डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनेशनल यूसेज नहीं करनी के करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसी ही बड़ी ही सर्विसेज है। अब मैं आपको थोड़ा सा एसबीआई दिखा देता हूँ, ये एसबीआई का है, एसबीआई का अपना नाम है ऑनलाइन एसबीआई, इस पे गए, यूजर नेम पासवर्ड लगाया, इसके बाद सवाल करिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी एसबीआई का ये इशू है, अगर किसी के पास यूजर नेम पासवर्ड है तो कहीं से भी खोल सकता है, इसमें नई जगह से आप चलाओगे तो ये ओटीपी नहीं मांगता। ये थोड़ा सा हर बैंक के प्रोडक्ट्स में कोई इशू रहता है। ये देखिए आ गया, इसमें देखिए मेन अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज आ गई, अकाउंट स्टेटमेंट, लॉगिन चेंज करना है, ई स्टेटमेंट लेनी है, एसबीआई के कुछ रिवार्ड्स हैं, जैसे वहां पे थे ये सारे के सारे फंड ट्रांसफर के आगे, फंड ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर आपने थोड़ी सी अमाउंट किसी को भेजनी है तो, हाँ जी,
थोड़ी सी अमाउंट किसी को भेजनी है तो बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने किसी को पेमेंट करी थी, 10,000 तक आप कर सकते हो किसी को विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। ये भी बैंक टू बैंक वेरी करेगा। ठीक है जी, बेनिफिशियरी ऐड करना है, एसबीआई में पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी और को पैसे ट्रांसफर करने हैं, एसबीआई के बाहर करना है, ये आईएमपीएस आ गया आपका, ये नेफ्ट और आरटीजीएस आ गया, इंटरनेशनली पैसे भेजने, ये डोनेशंस आ गई। देखिए डोनेशन कर सकते हो, एनपीएस कर सकते हो। डोनेशन में हम जाते हैं, किस खाते से भेजनी है, चलिए इस खाते से भेजनी है, किसको भेजनी है, सी देखिए, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, बाबा बालकनाथ, भारत के वीर, सीएम डिजास्टर फंड्स, सीएम रिलीफ फंड, तिरमन्या, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, माता भीमेश देवी। देखिए कितना है, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड, एसबीआई फाउंडेशन, श्री तारा देवी, हनुमान संकट मोचन। देखिए कितनी सर्विसेज है, बद्रीनाथ श्राइन, जगन्नाथ, माता वैष्णो देवी, नंदेड़ साहब, साईं संस्थान ट्रस्ट, दरबार साहब अमृतसर। यहाँ पे आप पैसे भेज सकते हैं, डोनर का नाम डालिए, डिटेल डालिए, पैसे चले जाएंगे। इसके अलावा ये बिल पेमेंट्स है हमारे पास, ये सारे के सारे बिलर्स आप ऐड करके जो मैंने दिखाए थे, म्यूचुअल फंड ले सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो, एफडी है ऑनलाइन खोलनी है, यहाँ से खुल जाएगी, आरडी खुल जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, टीडीएस वगैरह, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ओवरड्राफ्ट लेना है, उनकी रिसीप्ट निकालनी है, सब यहाँ पे अवेलेबल। टैक्सेस ऑनलाइन पे करने हैं सरकार को, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कुछ भी करना है यहीं से हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर हैविंग अदर एटीएम की कुछ सर्विसेज हैं, ई कार्ड, अपने सर्टिफिकेट लेने हैं, एसएमएस अलर्ट, ये डीमैट की सर्विसेज हैं जो मैंने आपको बोला था, जो उसमें करके दिखाया था मैंने। वी इन्वेस्टेड 14,950 फॉर डीमैट, पैन रजिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल दैट। इसके अलावा ये देखिए हमारे पास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, चेकबुक सर्विसेज, चेक पेमेंट बंद करनी है खोलनी है, ऐसी बेइंतहाशा सर्विसेज है ये हमारे पास। तो ऐसे हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, एंड वी नीड नॉट गो टू द बैंक। अब थोड़ा सा मैं पीपीटी पे वापस आता हूं उसी पे। इसमें कई तरह के हमारे पास रिस्क भी रहते हैं। अभी क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम नेट बैंकिंग चलाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड अपना शेयर ना करें। जब नेट बैंकिंग चलाते हैं तो उसमें फोटोज या वर्ड्स होते हैं, उसका ध्यान रखें। सिक्योर्ड यूआरएल, सिक्योर्ड यूआरएल जब हम देखिए खोलते हैं ना, ये मैंने बंद किया, एसबीआई खोला, तो यहाँ पे आपको एक निशान नजर आ रहा है, ये ताला सा लगा हुआ है, ध्यान देना। तो ये देखने की जरूरत है, इसका मतलब ये सिक्योर्ड साइट है। ये यहाँ पे कॉर्नर पे जहाँ पे यूआरएल लिखा है, ये देखिए इसके स्टार्ट में एक लगा हुआ है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें ये सिक्योर्ड साइट है, यहाँ पे डाटा वगैरह चोरी होने के चांसेस नहीं है। मैं एचडीएफसी खोलता हूँ, वहां पे भी देखिए ये लिखा होगा, ये देखिए नजर आ रहा है जी। तो इससे हमें ये सिक्योरिटी का इशू हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात, इसमें ट्रांसफर, फंड्स को ट्रांसफर थोड़ा कॉशियसली करिए, ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है खाता नंबर और साथ में होता है आईएफसी कोड। अगर वो सही है, किसी और के खाते में चले गए, नाम जो मर्जी हो, नाम रेलेवेंट नहीं है तो चले गए, वापस नहीं आएंगे। तो अगर हमने यूज करना है मोबाइल से या लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, तो पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करिए, या वाईफाई, पब्लिक वाले वाईफाई में कई बार दिक्कत हो सकता है, कोई हैकर बैठा हो और आपका डाटा ले जाए। और दूसरा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जो हमारे यूसेज है उसको थोड़ा लिमिट करके रखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो यूसेज है उसको हम लिमिट कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। इसके साथ हमारे कुछ देखिए रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं, ऑपरेशनल रिस्क है, सिक्योरिटी का रिस्क है। कई बार आप नेट खोलते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे साथ बड़े बार हुआ है, खोलते हो चलती नहीं है, चलते चलते रुक जाती है, तो रेपुटेशन का इशू है, लीगल इश्यूज आते हैं। आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना है तो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा लोग कंपटीशन के चक्कर में, ये रिस्क ऑफ अनफेयर कंपटीशन हो जाता है, मार्केट में रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, खासतौर पे फॉरेन एक्सचेंज के।
लिक्विडिटी का रिस्क रहता है कि जरूरत से ज्यादा कई बार बंदे कहीं पैसे ही ना ट्रांसफर कर जाएं, और ये भी हो सकता है कि जो आप ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो कई बार होती नहीं, तो परफॉर्मेंस का रिस्क, ऐसे रिस्क हमारे पास रहते ही हैं। इन टोटलिटी अगर आप कॉशियसली अगर इस्तेमाल करें नेट बैंकिंग को, तो मुझे लगता है दिस इज ए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। बंदे को भी फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है, दोनों का फायदा ही रहता है। पर थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करने के ध्यान दीजिए। अगर आप इसकी सर्विसेज लेनी है तो कैसे लेते हैं? आजकल तो एटीएम कार्ड आपको जो इश्यू होता है, या जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, उसमें हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके पर्टिकुलर डालिए, मोबाइल से ओटीपी आता है, आसानी से चला लेते हैं। पुराने टाइम में थोड़ा दिक्कत रहता था कि आपको इसको अगर सर्विसेज को यूज करना होता था, तब आपको बैंक में जाके अप्लाई करना पड़ता था, पासवर्ड आपके घर में आता था। अब ये चीजें आसान हुई है, अब तो आसानी से कर सकते हो इसको। मोबाइल बैंकिंग के मुकाबले अगर हम देखें तो इसमें मुझे लगता है कि द नंबर ऑफ द सर्विसेज और द रेंज ऑफ द सर्विसेज इन इंटरनेट बैंकिंग इज वास्ट, and in the mobile banking is comparatively on the lower side. तो मुझे लगता है कि अब अगर बच्चों के मन में सवाल है और सवाल आए तो अच्छी बात है, तो प्लीज जरूर पूछिए कि मैं अगर कुछ प्रैक्टिकली हुआ तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। Sir, excuse me, sir. Yes. There is a query in the chat box by some student. The student is asking, kindly demonstrate how we can redeem our debit card rewards in our account. ओके, मैंने अभी किया है, मैं अपने दिखाता हूँ। मुझे ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, वेट 1 मिनट, चलिए। डेबिट कार्ड के अभी पॉइंट मैंने रिडीम कराए थे अपने, तो क्रेडिट कार्ड के रहते हैं, आपको दिखाता हूँ। काफी सुविधा होती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मैं दूसरा अकाउंट अपना खोलता हूँ। देखिए इसमें भी फोटो लगी हुई है, मैसेज लिखा हुआ है मेरा। मैं इस पे चला गया, कार्ड्स में चला गया, कार्ड्स में चला जाता हूँ। ये यहाँ तक नजर आ रहा है आपको? कार्ड्स में गए हम, ट्रांजैक्शन में तो कार्ड अपडेट है, देखिए इंक्वायरी में आ गया, कैश बैक इंक्वायरी एंड रिडम्पशन। नजर आ रही जी स्क्रीन? यस सर, यस। ये देखिए कैशबैक इंक्वायरी और रिडम्पशन में गए, मैंने अपना खाता डाला, ओके किया। ये देखिए ये मेरे पॉइंट थे, यहाँ पे पॉइंट एक्रूड 62। यहाँ पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले 300-400 रुपये मेरा आया था, तो यहाँ को करके हम अपने विड्रॉ कर सकते हैं। मैं अपने जितने आए पैसे वो भी दिखा सकता हूँ आपको, मुझे लगता है कुछ आए थे। ये 314 रुपये नजर आ रहे हैं, ये वो डेबिट कार्ड कैशबैक है। अब दूसरा देखते हैं क्रेडिट कार्ड कैशबैक कैसे रहता है। क्रेडिट कार्ड में गए तो वहां पे भी ये देखिए आए रिडीम रिवार्ड पॉइंट्स, इसमें गए हम रिडीम रिवार्ड पॉइंट्स में। ये मेरा कार्ड है क्रेडिट कार्ड, इसको गए, इसे नई विंडो पे ले जाएगा। इस विंडो पे गए रिडीम रिवार्ड पॉइंट, तो मैं अपने अगर पॉइंट्स को, ये देखिए मेरे पास 2768 पॉइंट्स हैं, तो इसको मैं रिडीम करना चाहता हूं तो मैं इसको कैश में कर सकता हूं और प्रोडक्ट भी ले सकता हूं। मैं अगर कैश में करना चाहता हूं तो ये देखिए कैश रिडम्पशन 2768 के 416 रुपए मिल रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? अगर मैं कैश रिडीम नहीं कराता तो मैं बुकलेट ले सकता हूं, प्रोडक्ट ले सकता हूं। कैसे? ये देखिए ये आपको दे रहे हैं 660 पॉइंट्स में 100 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर, 660 पॉइंट कंज्यूम हो जाएंगे। उबर का, पॉथीस का, एपिक का, टप्परवेयर, शिमारू, देखिए बेइंतहाशा चीजें पड़ी हैं। ये फ्राइंग पैन है, 3580 रुपए का है, और इसमें आपको फ्राइंग पैन मिल रहा है, ये देखते जाइए।
₹500 का गिफ्ट वाउचर चाहिए फ्लिपकार्ट का तो 3330 रुपए लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। देखिए ये इसका जूसर पड़ा है 3980 पॉइंट में, आप इसको ले लीजिए तो घर पे आ जाएगा, आपके पॉइंट रिडीम हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, हम वाउचर ले सकते हैं। ये कैसे, जैसे ये आपको डोमिनोज का 100 रुपए का वाउचर पे 400 पॉइंट लग गया, मोर का, स्पेंसर का है, वॉयला का है, हश पपीज का है, ये सब कर सकते हो आप। ये मेरी रिवार्ड हिस्ट्री देख लीजिए, मैं काफी खरीदता रहता हूँ, तो पहले भी मैंने रिडम्पशन कराई थी इसकी। ये देखिए रिवार्ड हर महीने ऐड होते रहते हैं जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं, 6 महीने के। ये देखिए मैंने 3672 का मैंने रिडम्पशन कराया था और मुझे इसके पैसे मिल गए थे, तकरीबन 500 रुपया था। ये देखिए, ठीक है जी। तो ये ऐसे हो जाता है कि इसमें आप अपनी रिवार्ड हिस्ट्री देख लीजिए, मैंने कोई ऑर्डर किया उसका स्टेटस देख लीजिए, ये सब नेट बैंकिंग के थ्रू है। जब आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हैं उसके पॉइंट इकट्ठे होते रहते हैं। अभी देखिए 2768 है, इसके 400 रुपये कैश मिलने को तैयार है। तो आप ये भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं जी। ओके, कोई और सवाल? सवाल पूछना So अच्छी बात है, there, पूछोगे तो क्लैरिटी मैं there दे is पाऊंगा। one more query in the chat box. यस Can we change the nominee afterwards in FD? यस, नॉमिनी चेंज हो जाता है। आप एफडी को, तो ऐसा है, मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, मान लीजिए आपके खाते में पैसे पड़े हैं, अनयूटिलाइज्ड हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड कहीं चोरी हो गया, लोग पैसे निकाल सकते हैं। आप टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए एफडी बना लीजिए, बैंक जाने का जरूरत ही नहीं है, एंड यू कैन विड्रॉ कैंसल द एफडी एनी टाइम 24 आवर्स ए डे। रात को 2 बजे बना लीजिए, 3 बजे चाहे कैंसिल कर दो। नॉमिनेशन जो चेंज होनी है जब आपका एफडी बनता है, तो उस टाइम पे नॉमिनेशन आ जाती, उस एफडी की वही रहेगी, फिर आप एफडी कैंसिल करके नई एफडी बना लीजिए तो वो बन जाता है। ठीक है जी। अकाउंट की नॉमिनेशन बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है। एफडी की नॉमिनेशन आजकल अगर ऑनलाइन बनाओगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ऑनलाइन एफडी ऑनलाइन जब मर्जी कैंसिल करा लो, आसान है। So there is one more query from Rajvinder Singh. हम्म। Why banks charge us for IMPS transactions through bank app? वाई द बैंक, वाई द बैंक्स, Charge Why the banks charge us for IMPS transactions through bank app? आईएमपीएस का मतलब हमारे पास लाया जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ये इसको एनपीसीआई इंडिया की गवर्न करती है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। बैंक कोई भी सर्विसेज देता है तो उसमें चार्ज करता है। इसकी जो अगर अमाउंट हम देखेंगे तो शायद 3 4 5 रुपए ही है, दैट इज नेग्लिजिबल अमाउंट। आईएमपीएस करा लो, एनईएफटी करा लो, आरटीजीएस करा लो, बैंक थोड़ी सी अमाउंट चार्ज करता है। कई बैंक उसी टाइम चार्ज कर लेते हैं, कई बैंक उसको चार्ज बाद में कर लेते हैं। जैसे एचडीएफसी में अगर हमने अभी 1 रुपया ट्रांसफर किया था तो अभी ट्रांसफर चार्ज नहीं करेगा, शायद 4 दिन बाद 2 3 रुपए काट ले। तो अदरवाइज अगर आप चेक लिखते हो, किसी को पकड़ाते हो, वो बैंक जाएगा, देन दे आर गोइंग, यू आर स्पेंडिंग समथिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड पेट्रोल। उसके अलावा इसमें अगर 2 4 रुपए लगते हैं तो मेरे को लगता है कि बजट में ही रहता है, आसान है, सुरक्षित है और इमीडिएट क्रेडिट हो जाता है। Okay, sir. If any other participant is एनी having any क्वेरी ऑफ query, प्रैक्टिकल नेचर, नो इशू। then you may ask. Participants can ask the queries. Any participant having any query may unmute himself or herself and can ask हाँ, the query. नो इशू। I think now nobody is having any other queries. So thanks a lot, sir. मैं एक You और have पीपीटी given. दिखाता हूँ मैम, जस्ट 2 मिनट्स, वन मोर पीपीटी फॉर Okay. द स्टूडेंट्स Sure, इंटरेस्टिंग sure, अपार्ट sure. फ्रॉम इंटरनेट बैंकिंग। इट्स ए, आई थिंक कहाँ गया इसको, ये छोटी सी स्टोरी है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं बस यूआरएल देखता हूँ कहाँ रखा हुआ।
ओके, ये लगता मिल गया। इट्स ए स्मॉल मैनेजमेंट स्टोरी, बड़ी आसान सी है। इट्स ए स्टोरी नंबर 1। तो चलिए। It was a fine sunny day in the forest, and Lion is sitting outside his cave, lying lazily in the sun. Along comes a fox out on a walk. Fox, do you have the time? Because my watch is broken. Do you know the time my watch is broken? Lion, I can easily fix the watch for you. Fox, but it is very complicated mechanism and your big claws will only destroy it even more. कहती घड़ी है, कहता ठीक कर दूंगा, कहता नहीं तेरे तो बहुत बड़े बड़े पंजे हैं, तो इससे तो तू ठीक नहीं कर सकता। लॉयन कहता नहीं नहीं मैं तो ठीक कर लूंगा भाई। लॉयन, ओ नो, गिव इट टू मी एंड इट विल बी फिक्स्ड। फॉक्स, दैट इज रिडिकुलस। Any fool knows that lazy lions with the great claws cannot fix the complicated watches. Lion, sure, they do. Give it to me, it will be fixed. The lion disappears in his cave, and after a while he comes back with a watch which is running perfectly. The fox is impressed, and the lion continues to lie lazily in the sun, looking very pleased with himself. उसने वॉच ठीक कर दिया, वो चला गया fox. Again, soon a wolf comes along and stops to watch the lazy lion in the sun. Wolf, can I come and watch TV tonight with you because mine is broken? Lion, oh, I can easily fix your TV for you. Wolf, you did not expect me to believe such rubbish, do you? There is no way that a lazy lion with a big claws can fix a complicated TV. Lion तेरे से नहीं होगा. Lion, no problem. Do you want to try it? The lion goes into his cave and after a while comes back with a perfectly fixed TV. TV भी ठीक कराया. The wolf goes away happily and amazed. Next. Now scene. Inside the lion's cave, in one corner are half a dozen small and intelligent looking rabbits which are busily doing very complicated work with very detailed instruments. In the other corner lies a huge lion looking very pleased with himself. What is the moral of the story? If you want to know why a manager is famous, look at the work of his subordinates. मतलब इसमें लॉयन अपने आप में तो कुछ नहीं था, उसने बंदे ऐसे रखे थे जो अपने काम के मास्टर थे और उसका काम परफेक्ट चल रहा था। चलिए, ये मोरल था। ये स्टोरीज वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर फिर भी अभी किसी के कुछ सवाल हैं तो कर सकता है। Sir, now I request Professor Varinder Kumar, Deputy Coordinator, IQAC, Govinder Public College, and he is head of the Department of Commerce. I request Professor Varinder Kumar to propose a vote of thanks to our today's resource person. Okay, thank you, ma'am. Over to you, Varinder, sir. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Dr. Dhingra, sir. It's my great honor to present a vote of thanks to Dr. Dhingra, a great academician, man of intellect and wisdom. Dear sir, thank you so much for sparing your valuable time for today's webinar. On behalf of our college principal, Dr. Neena Seth Pajani, our faculty members, management, students, for organizing or for delivering the most informative lecture on the topic of internet banking as a practical exposure. And I thank you for the excellent hand-on session on the internet banking. And once again, sir, thank you so much. And I request you to have a touch with the college so that we will invite you again on the next webinar so that you should enlighten us again on the other topic related to the internet banking or relating to any other topic which is related with the commerce or the management field. Thank you so much, sir. It's really a great practical exposure and informative lecture. Thank you so much, sir. And have a nice day, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Ruchika ji. Thank you, Varinder ji. Thank you so much, sir. Okay. Thanks a lot. Have a nice day. Thank you. सर Yeah? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ, पूछिए। Yeah, please.
सर जो हम पीओएस मशीन्स में कार्ड स्वाइप करते हैं सर, वहाँ पर ट्रांजेक्शन के चार्जेस लगते हैं सर, वो कार्ड की कंपनी को जाते हैं क्या बैंक को जाते हैं सर? देखिए ऐसा है, या तो आपके पास डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड है। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी जो दुकान वाले को देती है, अगर आप मान लीजिए 100 रुपीज स्वाइप कराते हैं मशीन पे, तो जो दुकान वाला बंदा उसको 100 नहीं मिलता। इज इट ओके? इफ यू आर पेइंग 100 टू ए वेंडर, मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पे गए तो 100 रुपीज का कार्ड स्वाइप कराया, तो 100 रुपीज पेट्रोल पंप वाले को नहीं मिलेगा, उसको उसमें से 1 रुपया कट सकता है, 50 पैसा कट सकता है, 25 पैसा, डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर। ठीक है जी। लेकिन जो कुछ कंपनी जिनकी अभी अच्छी मॉल में जाओगे तो अगर 100 रुपए लेने हैं तो 100 रुपया ही वो स्वाइप करते हैं, अगर 5000 लेने हैं 5000 स्वाइप करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार रहते हैं जो शॉपकीपर्स है जिनका ज्यादा नहीं होता और वो इन चीजों में बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो आपसे ऊपर का चार्ज ले लेते हैं। लेकिन अच्छे दुकानदार, बड़े दुकानदार स्वाइप करने पे उतने ही पैसे लेते हैं जितने होंगे, लेकिन दुकानदार को उतने पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी उस बैंक को चला जाएगा उसका प्रॉफिट। आपके जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है उस पे भी आप ध्यान दीजिए, बड़े तरह के ऑपरेटर होते हैं। देयर इज ए रुपी पे कार्ड, देयर इज ए वीजा कार्ड, देयर इज ए वीजा इलेक्ट्रॉन कार्ड, देयर इज ए मास्टर कार्ड, देयर इज ए मैस्ट्रो कार्ड, देयर इज ए सिरस कार्ड, देयर इज ए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, देयर इज ए प्लस कार्ड। ऐसे आप जब कभी एटीएम में घुसेंगे तो उसके एटीएम की मशीन के ऊपर या दरवाजे पे लिखा होता है वी एक्सेप्ट दिस कार्ड्स। तो ये कैटेगरीज है, इनसे ये बैंक वाले सर्विसेज लेते हैं, और जो डिफरेंस होता है, जो कम मिलता है दुकानदार को, वेंचर वाले को, वो बैंक वाले का प्रॉफिट होता है। अभी एसबीआई कार्ड का अगर आप देखें, एसबीआई कार्ड की जो शेयर है 1100 रुपए का आज की डेट में। एसबीआई कार्ड अगर आपको पता हो तो वो कहां से कमा रहे हैं? जो डिफरेंस है हम जो देते हैं उसी से कमा रहे हैं। एसबीआई कार्ड का 1000 रुपए का 1100 रुपए का शेयर है, 1071 1071। ओके, ठीक है जी। ये देखिए आपको दिखा रहा है मैं 1071 एसबी कार्ड्स। डिफरेंस इज देयर मार्जिन। इज इट क्लियर? yes, Rajvinder, is it clear to you? हाँ जी सर, थैंक यू। Once again, thank you, Dr. Dhingra sir. You managed all the queries in a very practical aspects, in upbeat and in professional manner. Thank you so much, sir. Well, thank you very much, sir. Delighted to Thank you, have you. Varinder ji. Thank you. Thank you. Well,